قرآن پاک کو بنگلور کے نیل سندرا کے مسلمانوں کے لیے خوشی، فخر و اعزاز کی بات، اکابر علماء کرام کی موجودگی میں عظیم الشان جلسہ دستار بندی و تقسیم اسناد کا انعقاد۔ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کی دینی علمی تعلیمی خدمات کو سلام۔ ملک اور ملت کو عطا کیے مزید 119 نوجوان حفاظ و علماء کرام، MLA حارث اور دیگر کی شرکت۔ جو آپ نے دیکھی ہے یہ کہاں سے ابھی مدرسوں سے آئی؟ مدرسے ختم ہو گئے تو دین ختم ہو گیا، لہذا یہ مدرسے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ہر قسم کی نوبات سے مسلمانوں کو مدرسے کے ذمہ داروں کو مدرسے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، بنگلور کے نیل سندرا میں جشن اور خوشی کا موقع۔ یہاں کی قدیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم سے فارغ 119 حفاظ کرام و علماء اعظام کی دستار بندی و تقسیم اسناد کے لیے 15 دسمبر 2023 بروز جمعہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا۔ ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی راشد اعظمی، دارالعلوم دیوبند و دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن شورا مولانا عبدالعلیم فاروقی، ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث مولانا شیخ محمد ذکریہ اور دیگر کئی اہم علماء کرام نے اس جلسہ دستار بندی میں شرکت کی۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے طلباء کے سروں پر دستار رکھی اور اسناد پیش کیے۔ یہ لمحہ اس لیے بھی یادگار و تاریخی تھا کہ ملک کے بزرگ اکابر علماء دین ایک اسٹیج پر جلوہ افروز تھے۔ ان اعلیٰ علمی شخصیات کے دیدار کے لیے، ان کے بصیرت افروز خطابات سننے کے لیے اور جامعہ سے فارغ ہونے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے نیل سندرا اور بنگلور کے دیگر علاقوں کے مسلمان یہاں کثیر تعداد میں موجود تھے۔ مستورات کی بھی بڑی تعداد حاضر تھی۔ شانتی نگر کے MLA حارث، نیل سندرا کی مساجد و مدارس کمیٹیوں کے ذمہ داران، ملی و سماجی تنظیموں کے نمائندگان اس نورانی و عرفانی جلسے میں شریک تھے۔ اکابر علماء کرام نے ملت کو یہ پیغام دیا کہ ان دینی مدارس کی وجہ سے دین اسلام قائم و دائم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم عام ہو رہی ہے، معاشرے کی اصلاح و رہنمائی ہو رہی ہے، لہٰذا لوگ دینی مدارس اور علماء کرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، دینی مدارس اور علماء کرام کی قدر کریں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ہر گھر میں ایک عالم دین، ایک حافظ پیدا ہو، لہٰذا تمام مسلمان دین اسلام کے فروغ و اشاعت کے لیے دینی مدارس اور علماء کرام سے وابستہ رہیں۔ بہرحال تقریباً 7-8 سال کے وقفے کے بعد جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کا جلسہ دستار بندی و تقسیم اسناد کا پروگرام شاندار طریقے سے منعقد ہوا۔ بنگلور کے معروف عالم دین مولانا محمد زین العابدین کی دعائیہ کلمات کے ساتھ یہ عظیم الشان جلسہ اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر فلسطین کے حق میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی گئیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ یا اللہ ہماری اس جگہ کو قبول کر، اے اللہ اس جلسے کو قبول کر، یا اللہ یہاں سے جو تعداد نکلی ہے اس کو ذریعہ بنا کر اللہ ہمارا ہر گھر حافظ قرآن کے بن جائے، عالم دین کے بن جائے، یا اللہ سارنپور اس طرح محلہ مفتیان ہے، ایسے یہاں بھی محلہ مفتیان بن جائے، حفاظ کا محلہ بن جائے، علماء کا محلہ بن جائے، ایسے فیصلے فرما یا اللہ۔ یہاں جتنے فارغین ہوئے ہیں ان کو اپنے کرم سے کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، اخلاص کے ساتھ موت کی آخری سانس تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، حلال
पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमा, हराम रोज़ी के दाने दाने से भर। जितने जमा हुए हैं सबकी जायज़ तमन्नाएं हैं, सबके जायज़ आदात हैं। अल्लाह उन तमाम को अपने करम से पूरा फरमा, उन तमाम को अपने करम से पूरा फरमा। इस सब फलस्तीन की हिफाजत फरमा, गज़ा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, वहाँ हमारा पहुँचना मुकद्दर फरमा, वहाँ से एहराम बांधकर हरम को जाना मुकद्दर फरमा, खैर के फैसले फरमा, शर से हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया में गुनाहों का भ्रम नहीं है, कोई बच नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। तूने अपने कर्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाया था, उम्मत मुहम्मदिया को गुनाहों की आग से बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया काशिफुल उलूम आज से कई साल पहले दीनी उलूम, इब्तिदाई उलूम और शोबे हिफ्ज़ का इन्होंने इफ्तिताह किया। उस मौके पर मुझे भी हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ने इसको खूब तरक्की दी और मुख्तलिफ शोबे जैसे आप हजरात ने उसका नज़ारा किया, देखा आपने। माशाअल्लाह इसकी खिदमत बहुत ही वसी है, कई हजारों सौों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसे तलबा पढ़ते हैं और इन्होंने अपने निसाब को मुख्तसर भी कर दिया है। अगरचे वो खैर मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से तलबा भी बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आ रहे हैं और बराबर तरक्की के मंजिल पर गामज़न है। इसके जो जिम्मेदार और असातिज़ा किराम, असातिज़ा भी पूरे तरह इसमें पूरी लगन के साथ और पूरे शौक़ के साथ तालीम में लगे हुए, जिसकी वजह से तलबा की तालीम तरबियत बहुत अच्छी है। अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए, बस इतनी सी बात। मदरसे जामिया काशिफुल उलूम जो आपके इस हल्के का एक बड़ा मदरसा है, बेंगलुरु का एक बड़ा मदरसा है। बड़ी तादाद में जो है इस मदरसे से स्टूडेंट्स फारिग हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? अरे देखिए, इल्म हासिल करने का वजह और कुछ भी नहीं, इल्म हासिल करना है। और हर एक मुसलमान, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान हम सबके हाथ में दिए, उसे जब तक हम सीखते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये बच्चे लोग अभी जो नौजवान कुरान हाफिज बने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है। उनको तो जन्नत तो ऐसे ही मिल गया अभी, तो उनका दुआ से हमें भी जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, तो और क्या चाहिए। और दुनिया और आखिरत दोनों का भी उनको फ़ायदा है, और इस फ़ायदे को दूसरों लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, और रसूल से कुरान जिब्रील के हाथ से पहुंचाकर हम तक पहुंचाने का काम अल्लाह ने बहुत समझदारी से वो काम हुआ है। मतलब रसूल पढ़े लिखे नहीं थे, उनके हाथ में कुरान लोगों तक पहुंचाना बोले तो उसके अंदर बहुत मतलब है। रसूल नॉलेजेबल थे, उनको समझदारी अलग था, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। तब अल्लाह का जो आवाज़ है, अल्लाह का जो मैसेज है, हम तक पहुंचाने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थ्रू हमारे तक पहुंच गया। तो इससे बढ़कर क्या चाहिए दुनिया में? लोगों को समझ न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे। एक कुरान और एक कुरान कोई बना सकता है? इतना समझ गया तो जिंदगी आसान हो जाता है। ये अल्लाह का वही है और अल्लाह का मैसेज है, हर इंसान को इसको समझकर जीना है। तो ये एक मैसेज सिखा के, पढ़ा के, इतने लोगों को तैयारी करके हमारे इधर मदरसे से बाहर निकल रहे, तो बहुत खुशी का मौका है।
तो इससे ये बहुत फख्र का बात है हम लोगों के लिए। लेकिन चंद ताकतें जो है मदारिस को निशाना बनाती हैं, मदारिस को टारगेट करती हैं। वो कोई टारगेट पे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए मैसेज उसका है, कौन टारगेट करके क्या कर सकता है। अगर उसको भी चाहिए तो लेके पढ़ने दो, लेके समझने दो, अच्छे इंसान बनकर जी सकता है इसे समझ गया तो। नहीं समझे तो इंसान नहीं बनता, जानवर बनता है, उतना ही फर्क है। तो इसे कोई नहीं रोक सकता है, ये कोई किसी का भी कुछ भी नहीं कर सकता है। कुरान के साथ कोई दुनिया को चैलेंज है और एक कुरान बनाने को होता है, इतना साल हो गया बनाया, कोई नहीं बन सकता है। तो हमारे लोग मुसलमान के पास करके नहीं, ये पूरा इंसानियत के लिए है। जिस चीज को इसका फायदा उठा सकता है उठा सकता है। मदरसे की क्या तारीख है? ये जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम की तरफ से है, हमारे ज़िम्मेदार अहबाब की तरफ से, जो माशाअल्लाह 1970 में ये मदरसा क़ाइम हुआ, जिसके बुनियाद इसी महल्ले के पुराने जमात के अमीर हैं निसार हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। हज़रत ने इसकी बुनियाद रखी मकतब की शक्ल में, और कुछ सालों के बाद ये हिफ्ज़ की बुनियाद पड़ी इसके अंदर, और आगे चलते चलते अल्लाह ने इस मदरसे को परवान चढ़ाया। और कर्नाटक में हर ज़िले में हमारे तलबा माशाअल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें तलबा की बहुत सारी खुसूसियात हैं, इमामत में, खिताबत में, और बेशुमार खिदमत में तलबा अज़ीज़ माशाअल्लाह काम कर रहे हैं। तो आज के इस जलसे में कितने तलबा फारिग हुए हैं? आज के इस जलसे में माशाअल्लाह तकरीबन 119 तलबा फारिग हुए, जिसमें 90 पर 6 फुज़ला हैं, उलमा हैं, बकिया हुफ़ाज़ किराम हैं, और हमारे ये उलमा मुख्तलिफ़ जगहों से हैं। माशाअल्लाह इसके लिए काफ़ी मेहनतें हुई, और अल्लाह ने अकाबिर की आमद की बरकत से अल्लाह ने हमारे इस जलसे को कामयाब किया। कितने सालों के तकरीबन 7 साल हुए थे। 2014 में एक जलसा हुआ था इसी तरह, इसी पेंडाल में, जिसमें हज़रत मौलाना अबुल क़ासिम साहब दामद बरकातहू और मौलाना क़ारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाहिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मौजूदगी में जलसा हुआ था 2014 में, जिसमें 26 तलबा की दस्तार बंदी हुई थी, और तकरीबन 8 साल की मुद्दत में 119 यहाँ से फारिग हुए हैं। दुआ फरमाएं, हाँ, आइंदा दस्तार बंदी इंशाअल्लाह 5 साल में एक बार हम करते हैं, हर साल इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते। चला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आइंदा भी हम इस जलसे को इससे अच्छा करेंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इसको शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे, अल्लाह इसके असरात को सारी दुनिया में पहुँचाए। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं यहाँ जामिया का नाजिम हूँ, और हमारे जामिया के मुहतमिम साहिब का नाम मौलाना उज़ैर साहब है, और हमारे सदर साहब इसरार साहब हैं, और हमारे सेक्रेटरी साहब सैयद साजिद साहब हैं, और दीगर पूरी एक टीम है ज़िम्मेदारों की, जो ज़िम्मेदार अहबाब और असातिज़ा किराम की दोनों की क़ुरबानियों से अल्लाह ने इस मदरसे को तरक्की अता फरमाई। हमारी ख्वाहिश थी और तलबा की भी ख्वाहिश थी कि जैसे पिछली मरतबा जलसा हुआ वो इसी तरह या उससे अच्छा जलसा होना चाहिए। तो हमारी और कमेटी की सबकी ये फ़िक्र थी कि बच्चों को खुश करके एजाज़ देकर अच्छे अंदाज में रुख़्सत किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जलसा गुज़िश्ता जलसों के मुकाबले में बड़ा अच्छा रहा। काबरीन की आमद हुई और इनके खिताबात हुए माशाअल्लाह, अल्लाह का करम हुआ। बड़ा मजमा भी यहाँ पर था, और इस जलसे से हमारी कमेटी की एक सोच ये भी है कि दुनिया के सामने मदारिस के तलबा की इमेज को अच्छे अंदाज में पेश किया जाए। दुनिया के कॉलेजों के जो ग्रेजुएशन डे होते हैं बड़े आली पैमाने पर होते हैं, तो क्यों ना मदारिस वाले पीछे। अल्लाह ताला
हुफ़ाज़ को, उलमा को क़यामत में इंशाअल्लाह अच्छा बड़ा से बड़ा एजाज़ देने वाला है। तो दुनिया से हम उसका आगाज़ करेंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए कि उलमा का हुफ़ाज़ का एजाज़ अल्लाह कैसे फरमाएंगे, ताकि कौम भी समझ जाए अहले इल्म का एजाज़ कैसे होता है। उसका एक हल्का सा नमूना, एक झलक जो है हमारे काशिफुल उलूम कमेटी ने पेश किया है। मैं अपनी तरफ से मुबारक देता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ अपनी तरफ से और हमारी सारी कमेटी की तरफ से। इन अहबाब की कोशिशों में माशाअल्लाह इतना बड़ा जलसा हमारा यहाँ पर जो है को पजीर हुआ, और दुआ गो भी हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए और पूरे इलाके के लिए अल्लाह इसी हमारे जलसे को हिदायत का ज़रिया बनाए। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल खान कासमी है। मैं जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम का मुदर्रिस हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस जलसे को कामयाब करने में पिछले 2-3 महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह मशवरे होते रहे और हमारे ज़िम्मेदार अहबाब की और हमारे मुखलिस असातिज़ा इकराम की रातों रात फ़िक्रें होती थी, मशवरे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज ये इतना हज़ारों का मजमा जो 119 उलमा और हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी में अल्हम्दुलिल्लाह शामिल रहे। ये पिछले 2-3 महीनों का कोशिशों का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो जैसे शादी के मौके पर, तकरीबात के मौके पर खुशी होती है, उससे बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया दोनों जहां की तरक्की दिया है और हमारे हाफिज़ कुरान और आलिम दीन को जो एजाज़ मिला है, इसका तो दुनिया कोई मिसाल पेश नहीं कर सकती। इसका तो बदरज औला अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों जहां में उन्हीं आला मकाम अता फरमाएंगे। बस हमें ये खुशी हो रही है कि इस कदर आलीशान अंदाज से ये जलसा मुनाकिद हुआ। बस हमारी भी दुआ है और हमारे ज़िम्मेदार अहबाब की भी कोशिश है कि अल्लाह ताला इस जलसे को ज़रिया बनाकर सारे आलम इस्लाम में अल्लाह ताला खैर के फ़ैसले फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए जिसने दोनों जहां को बनाया है। अलगर्ज़ आज हमारे मदरसा अल जामिया काशिफुल उलूम नील संदरा मस्जिद अकबरी का सालाना जलसा हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 119 तलबा इकराम ने फ़रागत हासिल की। हाफिज़ कुरान से और उलमा इकराम की फ़रागत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हाजा में हमने 4 साल तालीम हासिल किए और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में हमारे असातिज़ा इकराम ने भरपूर हमारा ताउन किया। मुखलिसाना अंदाज़ में उन्होंने हमें पढ़ाया, उम्मत में चल फिर कर रहबरी किस तरह करना चाहिए, फ़िरक़े वारियत में किस तरह घूम कर चल फिर कर मेहनत करना चाहिए, इस तरह इसका हमें इल्म दिया गया। और हमारे मदरसे के ज़िम्मेदारान हज़रात ने भी किसी चीज़ की हमें कभी कमी पड़ने नहीं दी। उन्होंने भी अपनी जान माल अंत तक कोशिशें करके इस रंग को रंगा है। आज जो भी हम आपको नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे हमारे असातिज़ा इकराम की मेहनतें, उनकी दुआएं हैं। हम पत्थर थे, हमें सांच कर और संवर कर जो हमें आज मूर्ति के शक्ल में खड़ा किए हैं, इनके पीछे हमारे हज़रत असातिज़ा इकराम की हाथ और दुआएं हैं। मैं इन तमाम असातिज़ा इकराम का अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह इलाही में शुक्र अदा करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे मदरसे को दिन दुगनी चांद चुगनी तरक्यात से नवाजे और हमारे असातिज़ा इकराम की और ज़िम्मेदारान हज़रात की खिदमात को बेइंतहा कबूल फरमाए। इनके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। यहाँ से फारिग होने के बाद क्या आप आला तालीम हासिल करेंगे या? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिफ्ज़ की भी तालीम मुकम्मल हो गई और आलिमियत की तालीम भी मुकम्मल हो गई। अब मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर कबूल करेंगे तो मैं इफ्ता भी करने का इरादा रखता हूँ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಕಾಶಿಫಿ. ನಾನು ಇದೇ ಮದರಸದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ನನಗೆ ಶುರು ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ಗಳು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಏನಿದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನೋ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಓದಿರೋದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಓದಿಸಿರೋದೇ ತಿಳಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 100 ಸಾಲು ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು 100 ಸಾಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಅವರು. ನಾವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯವರು, ನಾನು ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಸೂರಿಂದ ನಾನು ಇರೋದು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನು ಅದು ಏನು ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಹೊರಗಿರೋ ಜನ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಜರತರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಹಜರತರು ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂತು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಜರತರಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಜರತರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹಜರತರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಜರತ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈಗಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇಮಾಮತ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರಬ್ಬಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಓದಿಸೋ ಮಕ್ತಬ್ ಒಳಗೆ 50 ಜನ ಹುಡುಗರು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅದನ್ನು ಹಾಂ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದರಸದೊಳಗೆ ಕನ್ನಡನೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೂ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಕಾಲೇಜದೇ ನಮ್ಮ ಮದರಸದೊಳಗೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. क्या नाम है आपका और आज आपको कितनी खुशी हो रही है? मेरा नाम मोहम्मद कलीम अनवर है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस नेमत से नवाजा, और हमारे वालिदैन ने हमें मदरसों में डालकर हमें दीन की तालीम दी है। माशाल्लाह हमारे वालिदैन को अल्लाह और हमारे असातिज़ा कराम को अल्लाह तबारक व तआला उनको इनका निअमत बदल बेहतरीन अता फरमाए। दीन का दाई बनाया अपने आपके वालिदैन जी। तो कितने साल यहाँ पर आपकी पढ़ाई हुई? माशाल्लाह मैं इब्तिदाई साल से लेकर यहीं तालीम मुकम्मल तक मैं जामिया इस्लामिया काशिफुल-उलूम में मैंने मुकम्मल तालीम हासिल की है। यहाँ के असातिज़ा कराम से मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारे फ़नून सीखे हैं। माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी बेहतरीन तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है मदरसे में। अभी फिल वक्त आप क्या कर रहे हैं? मैं फिल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसे का उस्ताद हूँ, इसका वहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला और असातिज़ा की दुआ की बरकत से। और कैसे यहाँ पर पढ़ाई रही, कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहम्मद ज़ुबैर अहमद है और मेरा आबाई वतन करनूल है। मेरी इब्तिदाई आलिमियत की तालीम यहीं से हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मैं इस्तिक़ामत के साथ इसी इदारे में रहा। और ये इदारे की शान जो अब नज़र आ रही है, रोज़ अव्वल ही से इसकी शान ये है, लेकिन लोगों को आज दिखाई दे रही है ये प्रोग्राम करने की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इस्तिक़ामत से यहीं पढ़ा, और इसके बाद जो है 1 साल उस्ताद भी इसी इदारे का अल्हम्दुलिल्लाह रहा। उसके बाद मैं अपने आबाई वतन जाकर वहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। वहाँ मेरी इमामत है, खिताबत है, मकतब है, साथ में हिफ्ज़ और नाज़रे का मदरसे में मैं उस्ताद भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है आज प्रोग्राम में मुझे दावत मिली तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम के लिए पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर कोई कमी वगैरह रही आपके दौरान तालीम? अल्हम्दुलिल्लाह कमी तो कोई नहीं रही, जितनी कमी जो भी आती तो फ़ौरन जो है हम तलबा, असातिज़ा और तलबा की मोहब्बत ऐसी थी, कोई कमी अगर तलबा ज़ाहिर कर देते तो असातिज़ा और ज़िम्मेदारान उसको पूरा करने की, उस कमी को दूर करने की जद्दोजहद में लग जाते, और उसको दूर किए बग़ैर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रहते। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस 5 साला निसाब में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदरसे के अंदर तालीमी सिलसिले में और क़याम के सिलसिले में किसी कमी को नहीं पाया अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक को जमा कर रहे हैं, कुरान पाक की हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं ऐसा रहा था कि जामिया काशिफुल-उलूम में तमाम इलाकों से माशाल्लाह दूर दूर से आकर लोग तालीम हासिल करते हैं, लेकिन हमारा महल्ला बकौल हजरत निसार हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मुसलमानों का समंदर से कोई मछली हमारे पास आती ही नहीं। पूरी मछलियां यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, लेकिन समंदर का कोई भी बच्चा हमारे पास नहीं आता इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए ये इजलास असल मकसद ये कि बेनूर के रहने वाले जरा ज़हन में ये बात भी रखें कि हम इस इदारे का ख्याल रखें, अपने बच्चों को बुलाकर जमा करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाएं और बेहतर से बेहतरीन तालीम दें। और उसके साथ
ایک بات آپ حضرات کی یہ بھی بتانے مقصود ہے، ارادہ بھی یہی تھا کہ ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ بہت سارے مدارس ایسے ہیں جن مدارس کی کوئی خاص زمین نہیں ہے، تمام مدرسے کرائے کے یہاں چلتے ہیں، کرائے پر چلتے ہیں، اور بہت سارے عارضی چل رہے ہیں، بہت سارے عارضی جگہوں پر یا مسجد کے ماتحت ادارے چلتے ہیں۔ انہی اداروں میں ہمارا بھی ادارہ مسجد کی عمارت کے پاس، مسجد کے پاس ایک چھوٹی سی عمارت ہے، اسی عمارت میں ہمارا ادارہ چل رہا ہے ایک زمانے سے، اور ہمارے علاقے کے لوگ ماشاءاللہ دور دور جا کر بہت سارا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں اس وقت آئے ہوئے تمام صاحبوں سے، تمام احباب سے، تمام ساتھیوں سے میں ادب میں گزارش کرتا ہوں ذرا توجہ دے کر ادھر ادھر اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ یہاں پر بہت ساری کارگزاریں آئی رہتی ہیں، ایسی ایسی جگہوں پر جا کر ہمارے ساتھیوں نے پیسہ لگایا جہاں مدرسے کا کوئی وجود ہی نہیں۔ آپ کا پیسہ آپ کے سامنے لگے گا اور آپ کا پیسہ آپ کے سامنے نظر آئے گا، آپ کا پیسہ آپ کے سامنے خرچ ہوتے ہوئے دکھائی دے گا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ آ کر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں دن بدن ترقی دیتا ہوا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ اور بھی مزید ترقی دے گا۔ اس لیے تمام حاضرین سے یہ نیت میں مقصود ہے، نیت کریں انشاءاللہ رمضان المبارک کا موقع تو جیسے صدقات زکات وغیرہ جمع کرنے کا موقع آتا ہے، اس موقع پر ضرور اپنی اس ادارے کا خیال رکھیں۔ ہم لوگ آپ کے پاس آئے یا نہ آئے، آپ لوگوں کی یہ ادارہ جانتا ہے اور آپ اس ادارے کو جانتے ہیں، آپ آئیے اور ضرور بھی ضرور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ مسجد ام کلثوم والے یہاں موجود ہیں، طریقے کے وہ ارے کے وہ آباد لاک ڈاؤن کے زمانے میں جس وقت تمام پوری دنیا میں قحط کا موسم چل رہا تھا، اس وقت میں انہوں نے ماشاءاللہ زکات وصول کی، وصول کرنے کے بعد معتبر مدارس جو ہمارے بنگلور کے ہیں اور اطراف کے ہیں، ان تمام مدارس کو لاک ڈاؤن کے زمانے میں زکات پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اس طرح ماشاءاللہ تمام مسجد والے اس لیے کہ آپ پر محلے والوں کا اعتماد ہوتا ہے، آپ اگر یہ کارروائی جس طرح مسجد ام کلثوم والے کیے آپ بھی انشاءاللہ کرنا شروع کرتے ہیں، بہتر سے بہترین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ اگر کسی محسن کے یعنی کوئی احسان کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں جزاک اللہ خیرا کہتا ہے تو گویا وہ اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، اس میدان کی صفائی کے لیے اور دیگر بہت سارے تعاون جن کا بڑھا رہا ہے، ہمارے شانتی نگر حلقے کے یہ میلے جناب یعنی حارث صاحب، ان کا بڑا تعاون رہا اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے افراد کو یہاں مستقل لگا دیا تھا، یہاں مستقل وہ رہ کر صفائی کا اور دیگر جتنا بھی یہاں کام ہو رہا تھا اس کی نگرانی بھی کر رہے تھے، تعاون پوری طرح ان کا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے محلے کے تمام مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے اور دیگر جتنے تنظیم ہیں ان سب کے ذمہ دار الحمدللہ جمع ہوئے تھے اور اس پر انہوں نے غور و فکر کیا، تعاون کیا، ان سب کا بھی تعاون رہا ہے۔ سب کے تعاون سے الحمدللہ یہ اجلاس کامیابی کے ساتھ اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ کس طرح آیا آپ حضرات کو عبد الوہاب کاشفی بن حسین صاحب حوالدار، مولوی محمد کلیم انور کاشفی، مہمان خصوصی میں حضرت مولانا ریاض احمد صاحب رشادی نام برکات ہوں اور حضرت عبد کو نماز پڑھاؤں۔
मौलवी मोहम्मद आरिफ काशिफी बिन शफी साहब बिलगाम। हज़रत मौलाना रियाज अहमद साहब रशादी दरवाज़ बरकातुहू इंशाअल्लाह इनामत इंशाअल्लाह अभी हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहू के दस्ते मुबारक से 2022 के फारिगी मौलवी मोहम्मद अमजद काशिफी बिन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब बेंगलोर। मौलवी मोहम्मद इम्तियाज काशिफी, मौलवी मिनहाजुल इस्लाम काशिफी, मौलवी मोहम्मद अफरोज काशिफी, मौलवी मोहम्मद हुसैन काशिफी, मौलवी मासूम साकिब काशिफी, मौलवी सैयद उज़ैर काशिफी, मौलवी मुदस्सिर अहमद काशिफी बिन मौलाना नसीम अहमद साहब मज़ाहिरी बेंगलोर। साहब बीजापुर, मौलवी मोहम्मद रबीउल हसन काशिफी, मौलवी मोहम्मद सालिम काशिफी, मौलवी मोहम्मद समीर काशिफी, आबिदीन साहब दामद बरकातुहू से गुजारिश है कि हज़रत के दस्ते मुबारक से Thank you.